Dear students, good morning. Today we are going to start the new session. As yesterday we have already completed the topic, what do you mean by negotiable instruments? And we have gone through the process of Indian banking system, Indian financial system, where we have studied that Negotiable Instrument Act is a very important act under the business law because every business needs a transaction and transaction needs some instruments so that payment can be done or process can be complete where a one business entity receives the consolidated amount to the other business entity. So we have few prescribed business transactions, negotiable instruments such as checks, promissory notes, and certificates of deposits. We have completed the above two, that is certificates of deposits and promissory notes. And we have seen that in both there is some party who issues and there is some party who receives. There must be a specific amount. The amount can be prescribed within a limits or it can be any amount like 5 lakhs, 6 lakhs, 17 crores, 19 crores, 5 million, 6 trillions, or it can be any. Or in the case of commercial papers, it can, but sometimes it is varies from company and from business entity to business entity. Moving towards the third negotiable instruments that are checks. So, check is a most commonly used negotiable instrument. Check is a banker check that is issued against your accounts. It is a written document. It has unconditional order by the account holder. What do you mean by unconditional order? Unconditional order means that check can be of any amount. No specific amount is mentioned. To the bank. Bank means drawing. Here we are having two words, drawer and drawing. Okay, the account holder. जिसका account होगा, the account holder. For an example, Suresh ji has given a payment to Mahesh. सो नाउ सुरेश जी का अकाउंट, सुरेश जी के अकाउंट से पैसा डिडक्ट होना है, महेश जी के अकाउंट में पैसा क्रेडिट होना है. सो इन दिस केस सुरेश जी विल बिकम द ड्रॉयर. व्हाट आई हैव सेड, सुरेश जी has to make some payment to Mr. Mahesh. Okay. Now, Mr. Suresh has uses his account. So, Suresh will become the drawer. Done? And to the bank. To the bank. For an example, he has used in HDFC. Done? Then, to pay a specific sum of money to the bearer or the named payee. Now, who will become payee? He will become the payee. He कौन है यहाँ पे? किसी बच्चे को डाउट ना रहे. He is Mr. Mahesh. Okay? It is served as a widely accepted form of payment in commercial transaction. Yes, it is very true that it is most commonly used negotiable instrument across the nation, across the world also, because heavy amounts that need some transactions in every business, you need to pay someone. So you are booking something, then also you need something. You have to transfer. Now check has their
unique identification number. So if you want to purchase a land also, you can give checks. आपको registry office में जाना है, then you can save checks because it has a unique identity number and that can be clearly identified in the case of any mishap. अगर कोई भी mishappening होती है, particular amount आपको mention है, so it can be clearly and it is very easily transferred from one person to another person. So they are very secure, they are very known, and they are most commonly used. Now, basically, आपको किस बैंक का चेक जनरली यूज करना चाहिए? सो आपका जो बैंक अकाउंट है, दैट इज वेरी ट्रू कि आपका चेकबुक आपके बैंक अकाउंट से रिलेटेड है. But let me clear you one thing. Always use serious transactions. कुछ बैंक्स ऐसे होती हैं बेटा जिनका transferring limit from one account to another account more than 2 days later, or you have to go in that particular bank only to deposit your check. But in the case of other things, आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना होगा. Serious branches offers you कि they can transact your check from one bank to another bank within a 1 day, and they can take a check of any other banks also. So if you are having an account in Punjab National Bank, but today you cannot go to Punjab National Bank and you are using your HDFC checkbooks, you are having an account in HDFC also, so you can drop your PNB check in HDFC Bank because both the banks have serious clearance. दोनों ही बैंक में ये फैसिलिटी पॉसिबल है. So before choosing your banks, be very crucial that bank should serve me the topmost customer relationships like RTGS, NEFT, net banking and many others. जहाँ पे मैं सब कुछ कर सकूँ. I can go for my fixed deposit also. I can take my mutual fund also. I can purchase a demat account also. I can use my own demat account also. So in these cases, choose your bank very wisely because before choosing the bank, you need to take a good care of your documents. You are submitting your documents in the bank itself. So it is very true that I cannot open my account in any one of the bank. As a personal, I don't like few banks like Prathima Bank. I don't like that bank because that bank doesn't offer me various online transactions. But let me take you the example of HDFC, ICICI or SBI. Personally, I like that banks because they provide me a n number of facilities. Yours could be another also. ये मेरी choice है, ये मेरे according perfect है. आपके लिए कोई और हो सकता है ना. There are few wealthy families जिनके लिए तो cooperative banks भी करते हैं. वो क्रेडिट्स ट्रांसफर कर देंगे आपका, वो आपको पूरी तरह से हेल्प करेंगे. सो इट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट. लेकिन अगर आप यंग हैं और आप ई बैंकिंग को यूज करना चाहते हैं, देन चूज योर बैंक वेरी वाइजली. क्लियर टू एवरीवन? नाउ मूविंग फर्दर, characteristics of a check. The first characteristics of a check, that is unconditional order to pay. A check contains an unconditional promise. What is unconditional promise? That I can pay you as rupees 10 also and I can pay you rupees 1 lakh also. By withdrawal to pay a specific sum of money to the payee or the bearer on demand. Now why we have written the word demand? It could be the possibility कि आप किसी के बर्थडे में गए जो आपका रिलेटिव है and you have given him a rupees. आपने उनको rupees गिफ्ट करे. अब he said कि I don't take cash. आपने उनको एक चेक काटा. वेरी क्लियर? तो बर्थडे में गए थे, हमारे नून थे, मान लीजिए आप अपने भतीजे के बर्थडे में गए और आपने उनको चेक दे दिया. सो दैट इज वेरी क्लियर कि आप अपने मन से दे रहे हैं, है ना. बट इट कुड बी ऑन डिमांड ऑल्सो
कि बिजनेस है, आपको कहीं बुकिंग के लिए कुछ अमाउंट ऑलरेडी पे करना, तो आप क्या कर सकते हैं, आप ऑन डिमांड से कहते हैं, ऑन डिमांड कि जो फ्रंट मैन है उसने आपसे ये डिमांड रखी है दैट बिफोर बुकिंग आई नीड सम कैश, और अगर वो बाहर है तो checks are the most useful transactions or the negotiable instruments for transferring money from one account to another account. Clear to everyone? So this is very simple thing. Now moving further, that is written instrument. Check must be written. Checks must be written and signed by the drawer. चेक कैसा होना चाहिए, रिटर्न होना चाहिए और साइन होना चाहिए बाय द ड्रॉअर. व्हाट डू यू मीन बाय रिटर्न? रिटर्न मींस उसमें अमाउंट अच्छे से मेंशन हो, इन फिगर्स लिखा हुआ हो, इन वर्ड्स लिखा हुआ हो, ऐसी कोई प्रॉब्लम ना. तो व्हाट इज रिटर्न? अमाउंट शुड बी रिटन, टाइम शुड बी रिटन. टाइम मींस डेट. क्लियर? वर्ड्स में लिखा हो, फिगर में भी लिखा हो. फॉर एन एग्जाम्पल, आई हैव गिवन रुपीज 5,000. 5,000 क्या हो गया, ये वर्ड्स हो गए. अगेन मुझे सेम चीज दोबारा से लिखनी पड़ेगी इन द केस ऑफ चेक, दैट इज 5,000 only. So why I have written this word only? Only क्यों लिखा है मैंने? Only मैंने इसलिए लिखा है कि कोई इस अमाउंट को चेंज ना कर सके. इसे आगे 5,100 ना लिखे. सेम इन द केस ऑफ वर्ड्स हम यहाँ पे हाइफन का यूज करेंगे. दैट मीन्स कि 5,000 ही है, इसको कोई 5 की जगह 50,000 ना बना, है ना. अदरवाइज इट कुड बी द पॉसिबिलिटी कि अगर आप इस तरह से नहीं मेंशन करेंगे तो वो क्या करेंगे, आपने 5,000 लिख के छोड़ दिया, अभी मैं यहाँ पे एक जीरो और लगा दूं, नाउ इट बिकम्स 50,000. क्लियर? और मैं अगर वहां सिर्फ 5,000 लिखूं तो it could be the possibility कोई लिख ले 5,999. देन तो ये मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, ये मिस्टेक नहीं होनी चाहिए. ये ध्यान रखिएगा आप लोग कि वर्ड्स और फिगर्स के बाद हाइफन और ओनली का यूज हमको करना ही है. And it should be signed. Without signature, check has no value. Because अगर वो साइन ही नहीं है, that means वो authentic ही नहीं है. Signature means your consent. Consent means authenticity. तो अगर वो बेटा ऑलरेडी कंसेंट अगर आपने दी है ना, तभी ये माना जाएगा कि वो ऑथेंटिक है, अदरवाइज उसको कोई ऑथेंटिक नहीं मानेगा. ऑथेंटिक से बेटर वर्ड है कंसेंट, और इसको हम लॉ में पढ़ते भी हैं. सो बेटर यूजिंग ऑथेंटिक वी शुड यूज द वर्ड कंसेंट. इट इंक्लूड्स एसेंशियल डिटेल्स such as name of the payee, ठीक है. नेम ऑफ द पेई का मतलब क्या है कि जिसको दिया है. अभी हमने एग्जाम्पल करा था ना हु इज द पेई, कौन था पेई, मिस्टर महेश. द अमाउंट टू बी पेड, कितना अमाउंट मिला है. डेट,
and the signature of the drawer, जिसके खाते से पैसा कटा है। क्लियर टू एवरीवन? पेमेंट बाय बैंक, the drawee bank is obligated to pay the amount specified on the checks to the payee or bearer upon presentations, provided there are sufficient funds in the drawer account. Then इन्होंने कहा कि ऑलरेडी अमाउंट स्पेसिफिक है, हमको सिर्फ ये इंश्योर करना है कि जो बैंक यूज करा है उन्होंने, उस बैंक के अकाउंट में उतना फंड होना चाहिए। देन फॉर एन एग्जाम्पल, Suresh ji wants to pay rupees 5,010 to Mahesh through HDFC Bank account. For an example, the number is this. डन? तो HDFC के इस अकाउंट में ये रुपीस होने चाहिए। अब देयर इज वन ट्रिकी पॉइंट। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आप रूरल में है, अगर आपने गांव में कहीं खाता खुलवाया है, तो इनका जो मिनिमम AQB है, AQB वो होता है 5,000। But if you are living in a city, urban, then the minimum AQB is rupees 10,000. Now, आपको 510 रुपीज उन्हें पे करने हैं। आपके अकाउंट में 6,000 रुपीज अवेलेबल है। 6,000 rupees is there in your account. इन द केस जैसे ही आप 5,010 रुपीज उन्हें पे करते हैं, आपकी फिगर ये बन जाती है। Now how much amount is left in your account? Rupees 90. Clear? Now the minimum AQB should be 5,000 or 10,000 in the case of cities. लेकिन how much amount is left in your account? बताइए जल्दी से। Rupees 90. Then अब क्या होगा? Insufficient AQB मेंटेनेंस का चार्ज लगा। Your check will be clear. Your check will be clear. That is of no doubt. चेक तो आपका क्लियर हो ही जाए। Then लेकिन आप पे क्या लगेगा? पेनल्टी लगेगी। कैसी पेनल्टी लगेगी आप पे? कि कुछ अमाउंट आपको बाद में पे करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल 120 रुपीज एज एन पेनल्टी। तो जैसे ही आप अपने बैंक में, हमने ये माना कि हमारा 5,000 वाला अकाउंट है और हम गांव में रहते हैं, देन तो जैसे ही आपने 5,000 रुपीज अपने अकाउंट में डाले, फिर प्लस 90 पहले से है, तो 5,090 हो जाता है। लेकिन क्या होगा, उसमें से डिडक्ट हो जाएंगे बेटा
जितनी पेनल्टी है, ठीक है। सो नाउ यू आर लेफ्ट विथ 4,880 रुपीज। क्लियर? अब ये फिर से देखिए क्यूबी से कम, तो आपके लिए क्या सॉल्यूशन होना चाहिए? दैट यू मस्ट डिपॉजिट एटलीस्ट ₹6,000, देन प्लस 90 विल बिकम 6090। और अब अगर इसमें से पेनल्टी कट जाती है, देन टू आपका AQB मेंटेन रहेगा। डन। देन टू आपका AQB क्या रहेगा? मेंटेन रहेगा, कोई लॉस बेयर नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, कितना अमाउंट आपका बच जाएगा? 5,970। अब ठीक है कि अब हमारा कोई भी पेनल्टी हम पे नहीं लगेगी। अब आप क्या कर सकते हैं? द अदर थिंग व्हाट यू कैन डू, AQB is average quarterly balance. Then what is AQB? Is average quarterly balance. That means कि हर 3 months में इतना पैसा होना चाहिए। क्वार्टर मीन्स कितने मंथ्स में हमारे पास? 12 डिवाइडेड बाय 3। क्लियर? हर 3 मंथ्स में हमारे पास इतना पैसा होना चाहिए। तो अब हम क्या कर सकते हैं कि लमसम एक साथ भी बहुत सारा अमाउंट सबमिट कर सकते हैं। अगर आप ये चाहते हैं कि मेरा हर बार सही आए, तो आप क्या करिए कि 5,000 का एटलीस्ट 4 टाइम्स, दैट बिकम्स 20,000, ये जमा करा दीजिए और इसको 1 महीने के लिए छोड़ दीजिए। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीने के लिए छोड़ दीजिए। फिर जब ये डिवाइड होगा तो आपका अमाउंट भी सफिशिएंट बनकर आ सकता है। Done. Now moving towards the next point, that is negotiability. So negotiability doesn't means only the checks are important. क्लियर? नेगोशिएबिलिटी का ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि सिर्फ चेक ही है जो नेगोशिएबिलिटी रेस करते हैं। नेगोशिएबिलिटी मींस दैट वी आर नेगोशिएटिंग ऑन समथिंग। फॉर एन एग्जांपल, आप एक शॉप पे गए और आपने उनसे कहा कि आई वांट टू हैव अ पीस ऑफ क्लॉथ, कॉटन में कुछ अच्छे सूट्स दिखाई दे, ठीक, वेरी सिंपल थिंग है ना। बहुत सारे लोग अपनी मम्मा के साथ जा चुके होंगे, ऑलरेडी इस तरह की शॉपिंग कर चुके होंगे। अब मम्मा ने क्या करा? मम्मा ने नेगोशिएट करना शुरू किया, ठीक है। या आप वेजिटेबल्स खरीदने जाइए कभी, या आप दिवाली की शॉपिंग पे जाइए। सो देन यू कैन सी कि जो ओपन मार्केट सिस्टम है वहां पे नेगोशिएशन इज अ वेरी नॉर्मल प्रोसीजर। कोई कुछ कहता है, आप उसको लोअर दाम पे चाहिए। देन अगर आप ओपन मार्केट का एग्जाम्पल नहीं लेना चाहते हैं, आप किसी का भी एग्जाम्पल कोट कर सकते हैं, बट इट शुड नॉट बी शोरूम, क्योंकि हमें ये बात बहुत अच्छे से पता है कि शोरूम्स में नेगोशिएशन पॉसिबल नहीं है। वी कैन नॉट नेगोशिएट इन दी शोरूम्स। हम ये नहीं कह सकते हैं कि एक मॉल में जाके हम डीकैथलन में गए और हम ये नहीं कह सकते कि सर इस रैकेट का प्राइस कम कर दीजिए, या इस शटलकॉक का प्राइस कम कर दीजिए, इस बैट का प्राइस थोड़ा कम कर दीजिए। थिंग्स आर ऑलरेडी इन फ्रंट ऑफ यू। इफ यू वांट टू परचेज यू कैन परचेज, इफ यू डोंट वांट टू परचेज इट्स ओके, है ना।
But in the case you are going to open market and you are going to buy some candles and crackers, आप दिवाली में बाजार में गए जहाँ पे मार्केट लगती है और अब आपको मोमबत्ती और कुछ पटाखे की जरूरत है, सो एट लास्ट यू कैन बार्गेन, यू कैन से। सो जो बार्गेनिंग होती है बेटा, बार्गेनिंग कैसे की जाती है, नेगोशिएशन कैसे किया जाता है, हाउ वी कैन ट्रांसफर अमाउंट, व्हाट अमाउंट शुड बी ट्रांसफर्ड, इट इज माय बिल और नॉट, इट इज हैविंग माय कंसेंट और नॉट, दैट इज प्रॉपरली इंडोर्स्ड और नॉट। सो अगर ये सारी चीजें हम एक साथ सोचते हैं तो तब एक लीगल वर्ड हमारे पास बनकर आता है। कौन सा लीगल वर्ड बनकर आता है? द वर्ड इज नोन एज नेगोशिएशन। Done. So, going through the definition of the negotiability, that means checks are negotiable instruments, meaning they can be transferred by the endorsement and the delivery. बिल्कुल true है बेटा। The holder of check has certain rights under the law. Very nice. Holder of check means जिसको hold हुआ है check, you will become the holder of the checks, has certain rights under the law, including the right to enforce payment against the drawer bank. उसके पास certain rights होते हैं, जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल कि चेक प्रॉपरली लिखा होना चाहिए, जिसके पास है उसको सफिशिएंट फंड होना चाहिए, सो इट शुड बी प्रॉपरली मेंशन एंड प्रॉपरली इंडोर्स। ओके, सो इंडोर्समेंट डजंट मीन्स कि सिर्फ हमने लिया और नाम लिख दिया। इंडोर्समेंट मीन्स कि हमारी कंसेंट भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है, हमने उसमें टाइम भी सही से लिखा, हमारी अकाउंट बैलेंस भी होना चाहिए। Now moving towards the crossing of the checks. Now what do you mean by the crossing of the checks? Then crossing of the checks involve drawing two parallel lines across the face of the check. It signifies the payment should only be made through the bank, not in cash over the counter. Crossing provides security and ensure that payment is credited directly to the payee account. जब भी आपको चेक बिल मिले तो आप चेक को क्रॉस कर सकते हैं। लेट मी शो यू द फिगर। ये भी मैं कर्सर अपना मूव कर रही हूं वहां पे, टू पैरेलल लाइंस आपको चेकबुक के कॉर्नर में बनाना। इससे क्या हेल्प मिलेगी? इससे हेल्प ये मिलेगी कि डैनियल ट्रेडर्स के अकाउंट में ही वो पैसा क्रेडिट, सेल्फ का पेमेंट नहीं होगा, पैसा सिर्फ अकाउंट में जाएगा और इसके सिवा कहीं पे भी ट्रांसफर नहीं होगा। क्लियर टू एवरीवन? क्लियर टू एवरीवन? अब क्रॉसिंग ऑफ द चेक वेरी इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप स्कूल की फीस सबमिट करने जा रहे हैं या आप अपने किसी सर्वेंट से कह रहे हैं कि लीजिए मेरी स्कूल की फीस सबमिट कराइए मेरे वार्ड की, तो आप चेक को ऊपर से ऊपर क्रॉस कर, क्रॉसिंग से आपको ये हेल्प मिलती है कि कोई उस चेक का मिसयूज नहीं कर सकता। योर सर्वेंट विल डायरेक्टली गो टू द अकाउंट ऑफिस एंड सबमिट दैट चेक। अब क्योंकि वो क्रॉस्ड, so the money from your account will be debited and credited to the college fees. So this is very important. The crossing of check is very good. If you have a checkbook and you are doing the business, you are having a daily transaction, just keep your checkbook crossed on each and every check leaflets. हर एक चेक पे आप क्रॉस कर सकते हैं and you can save also 5-10 checks for the self purpose, है ना? आप सेल्फ पर्पस के लिए भी कुछ चेक्स रोक सकते हैं, बट दिस इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट एंड द मोस्ट यूजफुल वे। क्लियर टू एवरीवन? सो मूविंग फर्दर,
The same definition has been written. They are the negotiable instrument. Endorse and deliver. कैसे होगा ये काम? Two parallel lines on the face of the check. इससे क्या सिग्निफाइज होता है, क्या दिखता है हमको? क्लियर? The next part is holder and holder and dues. Holder of check is a person in possession of check. The holder may be the payee or the subsequent transferee who has acquired a check through proper endorsement and delivery. I am again repeating, the holder of a check is a person in the possession of the check. जो बंदे के पास चेक होगा, जिसके नाम का चेक होगा, वही कौन होगा? होल्डर ऑफ द चेक. द होल्डर में बी पेइंग, वो व्यक्ति हो सकता है जिसके लिए पैसे ट्रांसफर किया जा रहा है, और एनी द सब्सिक्वेंट ट्रांसफर. फॉर एन एग्जाम्पल, मैंने यहाँ एग्जाम्पल कोट करा कॉलेज फीस का, तो ये भी एग्जाम्पल हो सकता है. Who has acquired a check, जिसे चेक मिला है, कैसे मिला है? थ्रू प्रॉपर एंडोर्समेंट एंड डिलीवरी, जिसके पास प्रॉपरली चेक मार्क होकर आया है. Now who will become the holder in due course? So अगर कोई इनरेगुलरिटीज या कोई डिफेक्ट नहीं है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये ध्यान रखिएगा. विदाउट एनी नोटिस, अगर डिफेक्ट्स एंड रेगुलरिटीज नहीं है, ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है. और एक व्यक्ति है जो आपके गुड फेथ में है. So in this case, you can transfer or you can ask that particular person to hold the check. The holder in due course is a person who acquires a negotiable instrument. Then holder in due course कौन होगा? वो person होगा जो कि acquire करेगा negotiable instrument. A holder in due course enjoys certain legal privileges, including the rights to enforce payment of the instruments against all practice parties liable on it. Clear? Now, what do you mean by endorsement? Now, this word is again and again repeating. So, what do you mean by endorsement? Endorsement refers to the act of signing and transferring ownership of negotiable instrument such as check to other party. इंडोर्समेंट किसको रेफर करता है? इंडोर्समेंट रेफर करता है मेरे उस एक्ट को जहां पे मैं चेक को साइन कर रही हूं और मैं ट्रांसफर कर रही हूं. मैं स्पेसिफाई कर रही हूं कि मैं किसे ट्रांसफर करना चाहती हूं, और वो कोई भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हो सकता है. फॉर एन एग्जाम्पल, चेक टू अदर पार्टीज, किसी दूसरी पार्टी को, खुद को पैसे नहीं ट्रांसफर करने. सब लोग इस चीज को क्लियर रखें. द एंडोर्समेंट ऑन अ चेक allows the holder to transfer the right to receive payment to other person. जो इंडोर्समेंट है चेक पे, वो हमें अलाउ करता है, जो होल्डर है ट्रांसफर का, उसे राइट मिले कि वो पेमेंट रिसीव कर सके. ठीक है? डिसऑनर ऑफ द चेक. डन. अभी डिसऑनर ऑफ द चेक कब कब हो सकता है? डिसऑनर ऑफ द चेक का मतलब है कि आपका चेक क्लियर नहीं हुआ है. ओके? चेक इज नॉट क्लियर. नॉट क्लियर का मतलब क्या है? कि ट्रांसफर ऑफ मनी नहीं हो पाएगा.
Dishonor of the check occurs when the drawee bank refuses to honor the check. जो ड्रॉई बैंक है, जिस बैंक में खाता है, refuses the honor of the check presented for the payment. आप गए, महेश जी गए थे सुरेश जी का चेक लेने. ठीक, हमारे सारे एग्जाम्पल में भी है यूजन टू नेम सुरेश जी एंड महेश जी. Now Mahesh ji went to the bank asking the banker or the banker. अगर आपको ये वर्ड कठिन लग रहा है, so then you can write the banker to endorse my check. To endorse my check. अब इस केस में उन्हें क्या पता चलता है? The account doesn't have sufficient fund. Then उन्हें क्या पता चला? Account doesn't have a sufficient fund. So अब क्या होगा? चेक डिसऑनर हो जाए. चेक विल बी डिसऑनर. Clear to everyone? The holder of the dishonored check may take a legal action against the drawer for the non-payment. अब यहाँ कौन एक्शन ले सकता है? महेश जी. इस लाइन में ये क्या कहना चाह रहे हैं आपसे? That महेश जी can take legal action against Suresh. Done? Clear to everyone? Noting. Noting refers to the process of recording the dishonor of the negotiability instrument by the notary, public, or bank officials. It serves as formal evidence of dishonor and may be required for legal proceedings. ओके, नोटिंग कब पॉसिबल है? नोटिंग वर्ड हम कब यूज करते हैं? जब डिसऑनर होता है किसी भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का बाय नोटरी पब्लिक और बाय बैंक ऑफिशियल. ओके, अब अगर आपको लगता है इफ यू हैव अ प्रॉपर एविडेंस then you can go for legal proceedings also. Protesting. Protesting involves formal notification of the dishonor of the negotiability instrument to the drawer and other parties liable on the instrument.
Protesting is typically carried out by the notary public or other unauthorized officials and serve as formal declaration of dishonor. अब जब आप प्रोटेस्टिंग करते हैं इसमें एक फॉर्मल नोटिफिकेशन आता है कि ये प्रॉपर निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या हो गया है बेटा, डिसऑनर, ठीक है, टू द ड्रॉअर और अदर पार्टीज को भी जो लायबिल है उस इंस्ट्रूमेंट के लिए। क्लियर? जो प्रोटेस्टिंग की जाती है वो जनरली नोटरी या पब्लिक ऑफिस के लिए की जाती है, अनऑथराइज्ड ऑफिशियल्स के लिए की जाती है, और इसमें लिखा है कि उन्हें पहले से पता होता है या वो ये जानते हैं कि ये डिक्लेरेशन है, किसका डिक्लेरेशन है, फॉर द डिसऑनर। क्लियर? अब ये टॉपिक ऑलरेडी हमने कल कवर करा हुआ है। हुंडीज, हुंडीज आर ऑल्सो द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स used in India. Now they are very similar to bill of exchange and promissory notes. And are typically used in commercial transactions, particularly in trading and finance sector. Hundi is governed by the provision of the Negotiable Instrument Act and are subjected to the same legal principle and other negotiable instruments. So, यहां पे हमने सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या देखी, लीगल इंस्ट्रूमेंट्स एंड अदर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। हुंडीज भी हमें यही बताता है, डिसऑनर भी बताता है, प्रोटेस्टिंग भी बताता है, नोटिंग भी बताता है। ये सारी चीजें हमें कहां से पता चलती है, विद द हेल्प ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट अंडर द चेक्स। These are the very important points. You just go through the notes also. Moving back to the notes, keywords. First is negotiable instrument. Negotiable instrument is a document that guarantee the payment of a specific sum of money to the bearer or named payee. It allows for the transfer of ownership by the delivery or endorsement, and the holder is entitled to enforce payment against the issuer or the tribe. Clear? Bill of exchange. Bill of exchange is a written order by one party to another party for the specific sum of money to third party also. Even after or future date, it is also used for the commercial or the credit system. It only involves two parties, that is drawer and the drawer. You must specify these lines. Promissory note is a written promise by one party. One party कौन है, जिन्होंने बनाया है, the maker और the issuer, to the other party. Another party कौन होगी, जिसे मिलेगा, जो रिसीव करेगा, either on demand at a specific future date. It is legally binding contract
and serve as evidence of the debt owned by the maker to the payee. Promissory notes are commonly used in lending and borrowing arrangements. ज्यादातर कहाँ इस्तेमाल होते हैं? पैसा लेने और देने के लिए promissory notes का arrangements किया जाता है. चेक क्या था हमारा? एक रिटर्न अनकंडीशनल ऑर्डर था. किसका ऑर्डर था? अकाउंट होल्डर का. दूसरा कौन था? बैंक था. एंड द थर्ड पार्टी जिसको पैसा मिलना था. टू पे a specific sum of money to the bearer on demand paying. It is commonly used as the means of payment in commercial transaction and provide a secure and convenient method of transferring funds between the parties, not outside the parties but between the parties. Crossing of check, this we have discussed. Two parallel lines होनी चाहिए on the face side of the check so that nobody else can use your checkbooks. Also, nobody else can take your check and transfer in their account, or nobody can mark your signature and get some cash from the bank. Holder of the check. Holder of the check is always a person who has a possession for the check. The holder may be the player or the subsequent transfer who has acquired the check through proper endorsement on the delivery. इसने कोई भी गलत काम नहीं करा है, इसको इसकी मेहनत से ये चेक मिला है और ये पूरी तरह से हकदार है कि ये इस चेक का पैसा बैंक से निकलवा सकता है. नेक्स्ट, endorsement refers to the act of signing and transferring ownership of negotiable instrument such as check, promissory notes. It allows for the negotiation and the transfer of the instrument in the new householder also. Now, endorsement can be blank also, demanding on the intention of the vendor. Bearer check. Bearer check means the check can be paid to any one of us. That is known as bearer check. Other checks, such like nominative checks, जहां पे सिर्फ एक ही बंदे का या एक ही एंटिटी का नाम हो, that is known as nominative checks. Crossed checks, order checks, account payee check, account payee, order, bearer and crossed. The check has two parallel lines. It's known as cross. Account payee check is crossed and has the word account payee. Indicates that is only be the deposited in the account of the payee. Certificate house. There is no such value inserted for which we can help
the right source person. Check is always verified the bank, and if sufficient funds are there, banker check will be from one person to another person. But in the case of insufficient fund, the check is not kept with the certified people, but it gets back to the endorser. Now these are the samples of bearer check, cross checks, other checks and account pages. Clear? These are the examples of checks. You can take 1 minute and you can just look what are the difference between all the checks. Account paying check and the cross check, दोनों में ही क्रॉस है. बेरर चेक और अदर चेक्स में कोई ऊपर क्रॉस नहीं है. वन चेक इज स्टिल मिसिंग, सेल्फ चेक, खुद को भी पैसे दिए जा सकते. Then moving further, सेल्फ असेसमेंट. ना आप लोग प्लीज इसे अभी मत देखिएगा, सोच के बताइएगा, एक बार गेस कर लीजिएगा. नीचे एक्सप्लेनेशन भी लिखा है कि ऐसा आंसर क्यों. ये कह रहे हैं बिल ऑफ एक्सचेंज कैन ओनली बी इन्वॉल्व टू पार्टीज ड्रॉअर एंड ड्रॉअर. आंसर पूरी तरह से गलत है. पेई कहां चला? मैं खुद अपने बैंक में खाते में चेक काट रहा हूं, ये कोई लॉजिक नहीं है. देयर मस्ट बी सम पेई मिसिंग था, इसीलिए जो ऊपर का एग्जाम्पल है वो क्या है? फॉल्स. A promissory note is always payable to the specific named payer. True, क्योंकि promissory note है और वो हमेशा कंटेन करता है एक स्पेसिफिक नाम और एक स्पेसिफिक अमाउंट. नेक्स्ट, थर्ड, check cannot be endorsed to another party or transfer. False. रीजन बताइए. चेक कैन बी endorsed बिकॉज चेक्स बने ही इसीलिए कि एक पार्टी से दूसरी पार्टी को पैसा इजीली चला जाए. सो वी कैन से चेक कैन बी endorsed. Crossing of a check prevent it from being cashed over the counter and ensure payment through bank. True. हमने यही पढ़ा कि क्रॉसिंग ऑफ अ चेक इसलिए इंपॉर्टेंट है कि उसमें बैंक का नाम, व्यक्ति का नाम, जगह का नाम और टाइम ऑलरेडी मेंशन होता है. This is clear to everyone? Moving further, the holder of check must always be a payee mentioned on the check. This is false. It could be the person who can be holder in due course. हमने दो व्यक्ति पढ़े हैं ना, holder and holder in due course. So it could be the possibility कि वो उनके पास ना रिसीव हुआ हो and that particular thing has been received by the another party. So holder in due course will be the right answer or holder of a person can be the right answer. तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते हैं कि सिर्फ उसी को मिलेगा जिसका नाम लिखा हुआ है. ठीक, रिसीव तो उसे कोई भी कर सकता है. क्लियर? Endorsement of a negotiable instrument is only possible by signing it on the reserve side. ये बैक साइड की बात कर रहे हैं बेटा.
This is not compulsory. This is not at all compulsory. A promissory note can be payable on demand or at the specific future date. True. यहाँ पे promissory note की जगह अगर सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट भी लिखा होता और यहाँ पे चेक लिखा होता तो भी ये स्टेटमेंट ट्रू था, बिकॉज ये स्टेटमेंट हर उस चीज के लिए ट्रू है जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। क्लियर टू एवरीवन? ये स्टेटमेंट हर उस चीज के लिए ट्रू है जो कि क्या है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की तरह काम कर रहा है या फिर काम कर रही है। नेक्स्ट, बिल ऑफ एक्सचेंज मस्ट ऑलवेज बी पेबल ऑन डिमांड। फॉल्स। इट कुड बी मेड ऑल्सो। मैंने अभी आपको चेक के कैसे बताया था ना कि आप एक के बर्थडे में गए, उन्होंने डिमांड नहीं करी है आपसे कि आप मुझे 11,000 का चेक दीजिए, लेकिन आपने अपनी मर्जी से उन्हें 11,000 रुपए का चेक दे दिया है। सो इट कुड बी a specific future date or it could be on demand also. Next, crossing of check does not affect its negotiability. True. क्रॉस कर रहे हैं चेक को, सिर्फ इसीलिए क्रॉस कर रहे हैं जिससे कि वो प्रॉपरली यूज हो सके, जिससे कि हम ये इंश्योर कर सकें कि हमको जिसको पैसा देना है उसी के अकाउंट में पैसा जाए। इससे इसकी निगोशिएबिलिटी पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ट्रू। द ड्रॉई ऑफ अ चेक इज अ पर्सन हु इशूज इट एंड डायरेक्ट द ड्रॉई टू मेक द पेमेंट। ट्रू। हाउ इट इज ट्रू? The drawer is a person who creates and signs the checks directing the drawee man to a specific amount. Drawer कौन होता है? पर्सन होता है जो बनाता है और जो चेक को साइन करता है, और उसमें अमाउंट भी स्पेसिफिक होता है। अब आप फिर से पढ़ लीजिए कि ड्रॉअर ऑफ अ चेक एक पर्सन है जो उसे इशू करता है या फिर बनाता है ऑन डिमांड या बाय इटसेल्फ, और डायरेक्ट करता है कि कितना और कब पैसा जाना है। ट्रू। अ क्रॉसिंग ऑफ चेक कैन आइदर एज जर्नल और स्पेशल क्रॉसिंग। ट्रू। हमने अभी पढ़ा 4 टाइप्स एंड इट कुड बी मोर देन ऑल्सो। सेल्फ भी मैंने आपको बताया। सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू बिकॉज क्रॉसिंग ऑफ अ चेक कोई स्पेसिफिक नहीं है कि यही एक लौता तरीका है, एक से ज्यादा तरीके तो हमने ऑलरेडी पढ़ ही लिए हैं। द होल्डर ऑफ चेक मस्ट बी नेचुरल पर्सन एंड कैन नॉट बी एन ऑर्गेनाइजेशन और अ कंपनी। फॉल्स। फॉल्स क्यों है? बिकॉज ऑर्गेनाइजेशन और अ कंपनी इज एन एंटिटी। इनकी अपनी लीगल एंटिटी है। जैसे आपका पैन नंबर होता है ना, एज अ पर्सन यू हैव पैन नंबर, सेम एज अ कंपनी इट हैज पैन नंबर। सो कंपनी की डेफिनेशन खुद में क्या कहती है? कंपनी कैन बी अ पर्सन और एंटिटी और ऑर्गेनाइजेशन।
एक हो सकता है, एक से ज्यादा हो सकता है, और एक बहुत सारी संस्था के लोग भी मिलकर एक कंपनी बना सकते हैं। क्लियर? दिस इज द ओनली रीजन ये स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स। इसीलिए स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स। A promissory note is always issued by a bank or a financial institution. False. Why it is false? Because we have already studied the promissory note can be issued by a company as well as the organization or by an entity or by a firm. Promissory note में हमने ये चीजें क्लियरली पढ़ी हुई है कि promissory notes भी 4 तरीके से इशू किए जा सकते हैं। सो इन दिस केस इट इज क्लियरली गिवन कि ये कह रहे हैं कि एक ही तरीके से होता नहीं। डेफिनेशन खुद में ये बताती है कि ये 4 या उससे और तरीके से हो सकता है। सो दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट बिकम्स फॉल्स। क्लियर टू एवरीवन? नेक्स्ट, endorsement of a negotiable instrument transfer ownership and the right to enforce the payment. Endorsement भी क्लियर है हमको सबको? Endorsement का क्या मतलब था? Endorsement का मतलब था कि हमने उसको प्रॉपरली साइन करा है, नेम लिखा है, वर्ड्स में लिखा, कंसेंट दी है, तो बिल्कुल सही है ये स्टेटमेंट कि ये क्या अलाउ करता है? ये अलाउ करता है हमें कि हम ट्रांसफर करें या हम इंश्योर करें कि उस व्यक्ति तक पेमेंट चला जाए। क्लियर? अ चेक कैन नॉट बी डिसऑनर्ड इफ इट इज क्रॉस्ड। फॉल्स। चेक कैन बी डिसऑनर्ड इफ इट इज क्रॉस्ड ऑल्सो। फॉर एन एग्जाम्पल, आपने क्रॉस का साइन तो बना दिया हो, आपने क्रॉस का बेटा साइन तो बना दिया, पर फंड नहीं था, डन? या सिग्नेचर मैच नहीं कर रहे हैं, डन? या फिर नेम क्लियरली डिफाइंड नहीं है, या फिर इन वर्ड्स और इन फिगर्स मैच नहीं हो रहे। ओके, तो सिर्फ क्रॉस करने से ही डिफाइंड नहीं होता है कि अब चेक डिसऑनर नहीं होगा। अगर इनमें से कोई एक रीजन है तो फिर से चेक डिसऑनर हो सकता है। क्लियर टू एवरीवन? सो दीज आर द फर्दर रीडिंग्स। फॉर एन एग्जाम्पल, मैं आपको एक इंडिया कोड का दिखा देती हूँ ओपन करके। आपको ऐसे लिंक पूरा कॉपी करना है बेटा, अपने सिस्टम पे जाना है और पूरा लिंक ही अपर उसमें पेस्ट कर देना, और आपको प्रॉपर यहाँ से दूसरे नोट्स भी मिल जाएंगे। इफ यू वांट टू हैव another, internet is not working right now, if you want to have another set of notes तो वो आपको यहाँ से मिल जाएंगे। देखिए आने लगे। डन? मैंने प्रॉपर पीडीएफ्स के आपको डिस्क्रिप्शन सेंड करे हैं फर्दर नोट्स के लिए, तो आप इनको भी कंसीडर कर सकते हैं। मैं एक चीज हमेशा कहती हूँ, रिपीट कहूंगी बेटा, कभी भी पढ़ाई करिए लॉ की, हमेशा किसी ऐसी जगह से करिए जो प्रॉपर वेबसाइट्स, इधर उधर से मत पढ़िए। मैं हमेशा इंडियन कोर्ट्स की वेबसाइट्स का यूज करती हूँ या फिर मैं इंडियन कानून की वेबसाइट का यूज करती हूँ। आप भी इसको ऐसे ही यूज करिए। देखिए ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट आ गया आपका पूरा 1981। मैंने कुछ भी नहीं करा है, मैंने बस ये लिंक आपको ऑलरेडी एक दिन पढ़ाया भी है और यही लिंक आपसे शेयर भी कर रही हूँ कि ये वो अमेंडमेंट है जो इंडियन कानून की वेबसाइट पे अंडर द इंडियन कोड एक्ट लिखा गया है। ठीक है, तो इसी तरह से सर्च करिएगा। एडिशनल नोट्स के लिए अगर रिक्वायरमेंट लगे तो कहीं और से इधर उधर जाने की रिक्वायरमेंट आपकी बिल्कुल भी नहीं है। क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स? सो वी आर एंडिंग दिस टॉपिक राइट नाउ and I have completed Negotiable Instrument Act. We have completed all 3 certificate of deposit, promissory notes and the checks. Okay, thank you so much for this session.
We will continue in another session having another experience on the business law. Thank you so much.